delta. So delta is the last part of a river. We have done all the different features which we can see in a river course from the headwaters to the end of the river. And then we have discussed the deposition, the erosion, and the different types of features formed as a result of deposition and erosion. Now we are at the end of the river, that is the delta. It's the last part of the river. Delta is the last part of a river, and it is located at the mouth of the river. So now the term delta is a Greek alphabet. It's a Greek letter, and it looks like a triangle. Here you see. So because of the resemblance of a delta to the triangle shape, the name delta is given to that river feature. Most of the rivers in the world have a triangular formation. Not all of them, there are some exceptions, but we can say more than 90% of the rivers around the globe have triangular type mouth, and that triangular mouth is a delta. Okay, so what are the other things which make up a delta? So we can say delta, in a delta, the river has nearly flat formations. The elevation of the river is nearly flat at the delta, and delta has deposition. So it's a flat area, so it's called as a plain. So depositional plain plus there will be deceleration in the रिवर्स वेलोसिटी. डिसेलेरेशन स्पीड का कम होना. रिवर की वेलोसिटी डेल्टा पे ऑलमोस्ट मिनिमम होगी. So when the speed is less, then capacity and confidence will also be less. The capacity क्या थी? The total number of load a river can carry, and confidence, the size of the particle, the largest size of the particle which a river can carry. तो ये दोनों चीज़ें डेल्टा में आकर स्पीड की कम होने की वजह से ये दोनों फैक्टर्स भी कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से डेपोजिशन होती है. When the capacity and confidence reduces, deposition takes place. So देन जो बड़े पार्टिकल्स होते हैं कोर्स सेडिमेंट्स, दे आर सेटल्ड फर्स्ट. वो पहले डिपॉजिट होंगे, और जैसे जैसे दरिया समंदर से मिल रहा होगा उसमें फिर मज़ीद छोटे पार्टिकल्स आहिस्ता आहिस्ता डिपॉजिट होंगे. Okay, so that is delta. Okay, within the delta, a river becomes braided, like tiny little channels, फिर बीच में डिपॉजिट, फिर चैनल. तो ये ब्रेडेड स्ट्रीम लाइक फॉर्मेशन हो जाती है डेल्टा पर, और in that river that is divided into a lot of branches, tiny little branches, और उन branches को कहा जाता है distributaries. The branches of a river and a delta is a distributary, जो पानी को डिस्ट्रीब्यूट करता है रिवर के पानी को. अगर हम डिस्ट्रीब्यूटरी को कंपेयर करें ट्रिब्यूटरी से, ट्रिब्यूटरी इज ऑपोजिट. लाइक ट्रिब्यूटरी का पानी मेन रिवर में जाता है, जबकि डिस्ट्रीब्यूटरी में रिवर का वन रिवर गेट्स वाटर, लाइक द मेन रिवर, मेन स्ट्रीम का पानी जब डिवाइड हो और वो छोटी ब्रांचेस में जाए तो वो डिस्ट्रीब्यूटरी है, और अगर छोटी ब्रांचेस से रिवर की तरफ आए तो वो ट्रिब्यूटरी. और इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूटरी मेन रिवर से लो एलिवेशन पे होगी, और ट्रिब्यूटरी मेन रिवर से हायर एलिवेशन पे होगी.
And we have several types of delta. They have given some, excuse me, examples of some famous delta. So here it's the Ganges River Delta. इसको सब गंगा के नाम से जानते हैं. And the shape of Ganges River Delta is arcuate, arc shape, and triangle shape. And this river has so much water. इसमें speed or इसका terrain or volume, what do you call it? The discharge is so much that that Ganges River Delta has a lot of mouths. तो इसलिए Ganges Delta, this is the delta of river Ganges. ये satellite image है. It's a picture taken from satellite. So is it fine now? So this is a satellite image of the Ganges delta और इसके अंदर multiple mouths हैं, इसलिए आप यहाँ पर अगर देखें जहाँ pointer blink कर रहा है, it's written mouths. Okay, it's written mouths of the Ganges, so it has multiple mouths. आपको यहाँ देख सकता है कि there are a lot of channels. जो आपको blue lines यहाँ पे नजर आ रही हैं वो significant branches हैं river की, significant tributaries हैं. Okay, so and then अगर हम इसको zoom करेंगे तो इसके अंदर further distributaries नजर आएंगी. So here this is, these are the different mouths of river Ganges जो कि Bay of Bengal पे जाकर ख़त्म हो जाता है. Okay, that is arcuate delta. And then another river, the famous one, Nile River, इसका delta भी arcuate है, यानी arc shape, more of a triangle like. Okay, यहाँ देखिए एक arc की formation हो रही है. If you trace the movement of my pointer or cursor, so ये इसकी formation है. So that triangle shape जो एक delta से resemble कर रही है, this is arcuate delta. River Nile has arcuate delta. Then the Danube River, ये यूरोप का एक बहुत famous river है Danube. That also has the arcuate delta as well as the Indus River, हमारा अपना. And the Tiber River, ये यूरोप का river है इटली में, इसका delta है estuarine delta. So estuarine delta is a delta which has estuary in it. और estuary क्या चीज़ है? It's a kind of an enclosed figure which has both fresh water and salty water. मीठा पानी भी उस part में होगा और दरिया समंदर का खारा पानी भी. So you can say, अगर हम इसी को as an example ले लें तो यहाँ पे आप देखिए ये dark green जो pattern है, अगर ये एस्चुरी होगी तो क्या होगा इसमें कि आधे पार्ट तक समंदर का पानी और फिर आधे पार्ट तक मीठा पानी, एंड दे काइंड ऑफ गेट मिक्सड अप. तो वहाँ पे दोनों की मिक्सिंग की वजह से ये फॉर्मेशन बनती है और इस तरह के फीचर को एस्चुरी कहा जाता है. और अगर किसी डेल्टा में एस्चुरी बहुत सिग्निफिकेंट है देन दैट डेल्टा इज़ एन एस्चुरीन डेल्टा. कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा शेप में और एज सच, बट क्या है कि इन एन एस्चुरीन डेल्टा द एस्चुरी विल बी वेरी prominent और very significant. और एस्चुरी की एक अलग ही हैबिटेट होती है, वहाँ के फिश और वहाँ का जो फौना होगा, यानी वहाँ जो जानवर या पौधे होंगे वो स्पेशली द फिश, दोज आर डिफरेंट फ्रॉम द कॉमन कोस्टल एरिया. या अगर वैसे ही फ्रेश वाटर का डेल्टा हो तो उसका
उसका नेचर डिफरेंट होगा. So that's why estuary is a very important coastal feature. So इटली के Tiber River में they have estuarine delta. And then they have discussed their own Mississippi River delta that is also arcuate. यहाँ पे Egypt River Nile, the delta of River Nile over here. Here you see this one, this green portion. This is another arcuate River Nile delta. And then we have a special one, which is Bird Foot Delta. It's a delta which resembles a bird's foot. Dominantly उसका triangular form ही होगा अगर आप किसी परिंदे के पंजे तो नहीं होते हैं, four toes होते हैं. Okay. So if you look at a bird's foot, it's triangular from the top. Bird foot top से triangular होता है, फिर नीचे आके उसके claws, नाखून, वो थोड़े spread out होते हैं. तो bird foot delta के अंदर the streams or the depositional feature extends beyond the coastline. यहाँ देखिए इस satellite image पर you can see this is Mississippi River Delta. Bird foot delta है. So ऊपर से इसकी डेल्टाइक फॉर्मेशन है ट्रायंगुलर, लेकिन आप नीचे यानी कि जो पार्ट समंदर से कनेक्ट हो रहा है उस पार्ट में आउटवर्ड प्रोजेक्शंस हैं बाहर की तरफ को. डेपोजिशनल फीचर बहुत सिग्निफिकेंटली समंदर के अंदर या जो कम गहराई वाला कोस्ट का एरिया है वहाँ पर ये बाहर की तरफ निकले हुए हैं, आउटवर्डली प्रोजेक्शन. सो आउटवर्डली प्रोजेक्टेड पार्ट. सो इन पार्ट्स की वजह से ये एक पंजे से रिजेंबल करता है, एंड दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एज एन अ बर्ड फुट डेल्टा. So and this diagram it shows the progression of the delta कि किस तरह से डेल्टा ने ट्रैवल किया with the passage of time. कि initially डेल्टा इस जगह पर था and then it shifted towards this part, then this three, जो number के according arrangements हैं. So these are the deltas and this is a bird foot delta. We have discussed arcuate delta, then bird foot delta, estuarine delta, 3 types हो गए. Let's move. Okay, then we have few rivers which are without delta. ऐसे river जिनमें delta ही form नहीं होता. And the example is Amazon, river Amazon. And why the delta is not formed? Because of high velocity and high discharge. Velocity इतनी ज़्यादा है कि डिस्ट्रीब्यूटरीज फॉर्म होने का मौका ही नहीं मिलता और दरिया समंदर पे एंड हो जाता है. एक्सक्यूज मी. Amazon, the largest river in terms of discharge and velocity. और उसके वेलोसिटी के ज़्यादा होने की वजह से और डिस्चार्ज के ज़्यादा होने की वजह से माउथ आ जाता है उस रिवर का, लेकिन उसकी कॉम्पिटेंस और कैपेसिटी कम नहीं होती. सो कॉम्पिटेंस और कैपेसिटी जब कम नहीं है तो इट्स कैरिंग ऑल इट्स पार्टिकल अलॉन्ग विद इट टू द सी. दैट्स व्हाई it's a river which does not have a true delta. कि ट्रू डेल्टा की डेफिनेशन मैंने लेक्चर के स्टार्ट में आपको बताई थी कि उसमें कैपेसिटी कॉम्पिटेंस कम होगी, वेलोसिटी भी कम होगी
और डिस्ट्रीब्यूटरीज की फॉर्मेशन होगी. So here broad maze of islands and channels. तो इसमें it's such a big river कि नॉर्मल डेल्टास के अंदर तो डिस्ट्रीब्यूटरीज और क्रीक्स वगैरह की फॉर्मेशन होती हैं, बट यहाँ पर आइलैंड्स, बाकायदा आइलैंड्स बने हुए हैं. एंड देन Rio de la Plata. This is another river in Uruguay which does not have a true delta. और ये दोनों साउथ अमेरिका के अंदर हैं. That region has a lot of water. And then the Columbia River. In the USA, that also lacks ट्रू डेल्टा. इसमें भी ट्रू डेल्टा नहीं है. वजह क्या है कि ऑफशोर करंट्स जो उसमें आती हैं, यानी समंदर की लहरें जो समंदर की वाली साइड से आए, दैट इज़ एन ऑफशोर करंट. एंड वो फॉरेन सेडिमेंट्स को रिमूव कर देती है, तो वो वहाँ पर सेडिमेंटेशन नहीं होती है, इसलिए इसमें भी ट्रू डेल्टा नहीं है. सो वी हैव सीन 3 रिवर्स, 3 एग्जांपल्स: अमेज़न, रियो डी ला प्लाटा एंड कोलंबिया रिवर, which lack true delta. इसके अलावा फ्लड एंड रिवर मैनेजमेंट, वी कैन से if like the countries which have more flood incidences, they adopt different types of techniques to avoid the floods. उसमें वो banks बनाते हैं, levees बनाते हैं. वैसे तो natural levees भी होती हैं, इसके अलावा man-made levee भी है. और yeah, then they make dams to control the floods. And canal system also helps in controlling or managing the floods. Okay, so ये हमारा अपना रिवर इंडस है. 2010 में बहुत सिवियर फ्लड्स आए थे पाकिस्तान में, ऑलमोस्ट इन 3 प्रोविंसेस, पंजाब के अंदर, सिंध के अंदर और KPK के अंदर. द फ्लड वाज वेरी एक्सट्रीम. और here this satellite image, it shows the extent of the flood. So these green area, ये blue part तो main river है, और जो greener part है, that shows the extent के river कहाँ तक the flood spread across that area. Okay, इस satellite image के अंदर एक और ख़ास बात है, वो ये है कि whenever you see the satellite image of the world, यहाँ पे आप देखें इंडस को या पाकिस्तान को अगर हमें लोकेट करना हो, तो यू सी इट इज़ मेकिंग अ लेटर एस शेप बन रहा है. सो दिस इज़ आइडेंटिफिकेशन पॉइंट फॉर पाकिस्तान. ये हमारा सिंध का हिस्सा है, ठट्टा बदीन, और इसी के थोड़ा सा वेस्ट की तरफ लेफ्ट पर यहाँ पे कराची है. सो ऑफ कोर्स यू गाइस आर ज्योग्राफी स्टूडेंट्स, तो आपको एटलीस्ट सैटेलाइट इमेज के अंदर कुछ पॉइंट ऑफ आइडेंटिफिकेशन हो जिससे आप उसे आइडेंटिफाई कर सकें. ओके, ये जो एस शेप्ड है, इसके नीचे यानी साउथ में आपको अरेबियन सी नज़र आएगा, यानी समंदर, और समंदर के बिल्कुल ऊपर ये एस शेप है. और अगर आप राइट साइड पे जाएं तो एक ट्रायंगुलर फॉर्मेशन है जो कि इंडिया है. सो दैट्स हाउ यू कैन आइडेंटिफाई पाकिस्तान ऑन अ सैटेलाइट मैप विच इज़ नॉट लेबल्ड. राइट, सो हमारे यहाँ फ्लड मैनेजमेंट नहीं थी प्रॉपर, इस वजह से बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुई थी. और इफ़ वी सी द एग्ज़ाम्पल ऑफ कराची, तो उस दौर में जो लोग डिस्प्लेस हुए थे, इंटरनली डिस्प्लेस हुए थे, वो आज तक कराची में
मौजूद हैं और बहुत सारी कच्ची आबादियां बन चुकी हैं उन फ्लड विक्टिम्स की माइग्रेशन से. Okay, then there is the definition of flood. You see, high water flow that overflows the natural bank along any portion of the stream. जब दरिया अपने natural bank को overflow कर जाए और दरिया के सराउंडिंग वाले एरियाज में यानी फ्लैंकिंग एरियाज दोनों साइड के एरियाज में वो पानी स्प्रेड आउट हो जाए, then it is flood. When I was a child, I used to think कि फ्लड उस वक्त आता है जब पानी 2 फ्लोर 3 फ्लोर ऊंचा हो. But then now I know, when I've studied, that flood is a condition when the water overflows and when the water stands. It's like वो 6 इंच का पानी भी हो सकता है, 2 इंच का भी हो सकता है, 1 फुट का, 2 फुट का. तो बस ओवरफ्लो करे और ड्राई एरिया को वो गीला कर दे और पानी वहाँ पे थोड़े टाइम के लिए खड़ा हो जाए, तो ये फ्लड की कंडीशन होती है. राइट, सो ये कुछ एग्जांपल्स हैं कि किस तरह से उन्होंने एम्बैंकमेंट्स बनाई हैं. एंड हियर अगेन यहाँ पे लीवी ब्रेक हुआ है और पानी का ब्रेकआउट या ब्रीच हो गया. सो हियर यू सी ये मैन मेड लीवी है. एंड हाउ कैन वी से दैट? बिकॉज इट्स एक्सट्रीमली स्ट्रेट. Then that's how different types of stream discharge are measured. ये structures लगाए जाते हैं और उसके थ्रू stream discharge की measurement होती है. Then when they measure the stream discharge using several instruments, के ये केबल कार जो है इसके अंदर एक सस्पेंडेड मीटर होता है. इस मीटर के थ्रू एंड देन साइड में यानी रिवर के बैंक के पास एक और इंस्ट्रूमेंट गेज लगा होता है. एंड रिवर के सेंटर में भी एक स्टाफ गेज होता है. तो ये चारों रीडिंग्स को लेकर फिर वो एक डिस्चार्ज बताते हैं कि हाँ, एट दिस पॉइंट दिस मच अमाउंट ऑफ वाटर इज फ्लोइंग. सो यू सी दीज आर द स्ट्रक्चर्स. अच्छा, बाय यूजिंग द डिस्चार्ज वैल्यूज the scientists create hydrograph. So hydrograph shows the stream discharge at a specific time at a specific location. Location wise, time wise, वाटर डिस्चार्ज को जब ग्राफ में रिकॉर्ड किया जाए तो ये हाइड्रोग्राफ है. एंड आई थिंक नाउ या दैट्स a hydrograph. So you see, due to urbanization, शहरी इलाके बनाने की वजह से. एंड शहरी इलाके क्या हैं, अर्बनाइजेशन क्या है? जब हम नेचुरल सॉइल को डिस्टर्ब करते हैं, हम नेचुरल वेजिटेशन को डिस्टर्ब करते हैं और ज़्यादा मैन मेड फीचर्स बनाते हैं. कंक्रीट सरफेसेस, रोड्स को सील कर दिया, बिल्डिंग्स बनाई तो उसके सराउंडिंग में जो नेचुरल एरिया था उसको भी हम सील कर देते हैं, सीमेंट से पैक कर देते हैं. तो एज अ रिज़ल्ट वाटर कैन नॉट गो इन टू द ग्राउंड, जिसकी वजह से स्ट्रीम फ्लो या डिस्चार्ज किसी भी स्ट्रीम का बढ़ जाता है. और जब बारिशें होती हैं तो वो ओवरफ्लो कर जाते हैं स्ट्रीम्स. लाइक वी Karachiites have experienced that quite a number of times whenever it rains. Okay, so ये है अर्बनाइज्ड पैटर्न. अर्बनाइजेशन यानी शहरों का बनना, शहरी इलाकों का बढ़ना, जिसकी वजह से
फ्लडिंग इवेंट्स बढ़ जाते हैं. So picture B over here, it shows flooding event. कैलिफोर्निया के अंदर ये फ्लड आया और किस तरह से सारे घर डूब चुके हैं. So that was my concept of flood in my childhood, but now I know कि ज़रूरी नहीं है कि मकान की छत भी डूबे. अगर पानी मकान के अंदर भी आ रहा है वो भी फ्लड है. So that's the end of the chapter.